بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہلول لودھی ایک عقل مند سلطان تھا۔ اس کی ظاہری خوبیاں ہی ناقابل بیان ہیں۔ مذہب اور شرع کا سختی سے پابندی کرنے والا تھا۔ سفر میں زیادہ تر فقراء اور درویش لوگوں میں رہتا تھا اور ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اپنے افغان بھائیوں کی عزت افزائی کرتا تھا۔ اپنے افغانی امراء کے سامنے تخت پر جلوہ افروز نہ ہوتا بلکہ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ دہلی فتح کرنے کے بعد جو خزانہ ہاتھ آیا وہ برابر افغانی امراء میں تقسیم کر دیا اور ایک ہی حصہ اپنے لیے رکھا۔ منگول سالاروں اور لشکریوں پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لشکر میں 20,000 منگول سالار اور لشکری تھے۔ جہاں کہیں کسی مقام کے لیے سن لیتا کہ وہاں کوئی تیگ کا دھنی اور عمدہ جنگجو ہے، اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا۔ سلطان بہلول لودھی بلا کا جرأت مند، شجاع اور عاقل سلطان تھا۔ آئین جہانداری اور حکومت کے امور میں اسے خاص ملکہ حاصل تھا۔ کبھی جلد بازی سے کام نہ لیا کرتا تھا۔ ہمیشہ رعایا پروری اور عدل و انصاف میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ مالوا شہر کے اندر جشن کا سما تھا۔ گلیاں کوچے شہرائیں بالکل صاف ستھری کر کے سجا دی گئی تھی۔ لوگ گلی کوچوں بالکونیوں میں جمع ہو گئے تھے۔ بچے عورتیں چھتوں پر چڑھ کر بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مالوا کا راجہ پرتاپ دیو، اس کی رانی مندوری، دو بیٹے نرسنگ اور رائے بھیم، دونوں راجکماریاں کرن دیوی اور کمپل دیوی مالوا شہر کے شرقی دروازے سے باہر کسی کا استقبال کرنے کے لیے زرق برق لباس پہنے تھے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مالوا کے سالار، امراء اور لشکریوں کا سالار اعلیٰ سب بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں شہر کے اس دروازے کی طرف ایک کاروان آتا دکھائی دیا۔ وہ کاروان بگھیوں اور محافظ گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ قریب آ کر بگھیاں رک گئی۔ ان بگھیوں کے ساتھ جو محافظ دستے تھے وہ بگھیوں کے دائیں بائیں اور پیچھے چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب بگھیوں کے اندر سے لوگ اترنے لگے تب مالوا کا راجہ پرتاپ دیو، اس کی رانی مندوری، بیٹا نرسنگ، رائے بھیم اور دونوں بیٹیاں کرن کماری اور کمپل دیوی آگے بڑھی اور پرجوش انداز میں سب کا استقبال کرنے لگی تھی۔ آنے والوں میں گوالیار کا راجہ مان سنگھ، اس کی رانی ساونتری دیوی، بیٹا رائے کھتورا اور راجکماری سلون دیوی تھی، جبکہ دوسری بگھیوں سے اودے پور کا راجہ اترا تھا جو رانا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ساتھ اس کی رانی رتبیل، بیٹا گوبند رائے، بھانجا چترسال اور بیٹی رتن کماری تھے۔ جب سب آپس میں پرجوش انداز میں مل چکے تب مالوا کا راجہ پرتاپ دیو، اس کی رانی، بیٹے اور بیٹیاں سب کو لے کر مالوا کے راج محل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ خوبصورتی اور خوشبو کا یہ کاروان جس کوچے، جس گلی، جس شہرا سے بھی گزر رہا تھا، دائیں بائیں شہرا کے کنارے اور چھتوں پر کھڑی عورتیں، بچے سب پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ سب راج محل میں داخل ہوئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ نشستیں سنبھالنے کے بعد گفتگو کا آغاز پرتاپ دیو نے کیا اور گوالیار کے راجہ مان سنگھ اور ادے پور کے رانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب سے آپ دونوں نے اپنے قاصد بھجوائے تھے کہ آپ دونوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مالوا تشریف لائیں گے، تب سے میں اور میرے اہل خانہ، میرے سارے سالار بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جو قاصد آپ لوگوں نے بھجوائے تھے انہیں میں نے بہت قریدا کہ آپ دونوں راجہ ایک ساتھ کس سلسلے میں یہاں آ کر مجھے عزت بخشنا چاہتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے قاصدوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہاں تک کہتے کہتے پرتاپ دیو کو خاموش ہو جانا پڑا تھا، اس لیے کہ ادے پور کا راجہ جسے رانا کہہ کر مخاطب کرتے تھے بول اٹھا، پرتاپ دیو، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم دو کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا کام یوں جانو میرا ذاتی ہے، دوسرا کام ہم سب کا ہے۔ پہلے میں اپنا ذاتی کام کہتا ہوں۔ یہ میرے پہلو میں میرا بھانجا چترسال بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت میرے ہاں راجکمار کسی ہے۔ اس کے لیے آپ کی راجکماری کرن دیوی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے۔ اس موقع پر مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی بیٹی کرن دیوی، جو بلا کی حسین اور خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر حیا اور شرم رقص کر گئی تھی۔ چہرہ چھپانے لگی۔ وہ ابھی 9 عمر تھی، بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، اور اس کی دوسری بہن جس کا نام کمپل دیوی تھا وہ اس سے بھی چھوٹی تھی۔
मालवा का राजा प्रताप देव इस सिलसिले में सबसे पहले अपनी रानी मंदूरी से मशवरा करता रहा। फिर मंदूरी ने इस मौजू पर किरण देवी से कुछ देर गुफ्तगू की। फिर मंदूरी ने राजा प्रताप देव के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। यहां तक कि प्रताप देव उदयपुर के राणा को मुखातिब करके कहने लगा, हमें यह रिश्ता मंजूर और कबूल है, लेकिन एक शर्त है। उदयपुर के राणा के चेहरे पर पहले हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था, फिर किसी कदर संजीदगी की लहर आई और कहने लगा, कैसी शर्त? इस पर प्रताप देव कहने लगा, मेरे अजीज भाई, शर्त यह है कि किरण देवी मेरी बड़ी राजकुमारी है, अभी छोटी है, लिहाजा मैं इसकी रुखसती नहीं करूंगा, अभी बलूगत को भी नहीं पहुंची। इस पर उदयपुर का राणा कहने लगा, कोई बात नहीं, रिश्ता तय हो गया है। किरण देवी को जब आप रुखसत करना चाहेंगे हमें मंजूर है, बस हम ये चाहते हैं कि आज से किरण देवी हमारी इज्जत और हमारी आबरू है। प्रताप देव मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे और मेरे अहले खाना को यह मंजूर है। यहां तक कहने के बाद राणा जब खामोश हुआ तब प्रताप देव ने कुछ देर तक अपनी रानी मंदूरी से मशवरा किया। दोनों कुछ देर राजदाराना गुफ्तगू करते रहे। फिर प्रताप ग्वालियर के राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपका जाती मसला हल हुआ। इस मौके पर अगर मैं एक जाती मसला पेश करूं। इस पर दोनों राजा मुस्कुरा दिए। यहां तक कि ग्वालियर का राजा मान सिंह बोल उठा, प्रताप देव, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, बोलो तुम्हारा जाती मसला क्या है। इस पर लम्हा भर के लिए प्रताप देव की निगाहें ग्वालियर के राजा मान सिंह की राजकुमारी सलवंत देवी पर जम गई थी। फिर कहने लगा, मैं आपकी राजकुमारी सलवंत देवी का हाथ अपने बेटे नरसिंह के लिए मांगता हूं, आप बोलें आप क्या चाहते हैं। जवाब में कुछ देर तक ग्वालियर का राजा मान सिंह अपनी रानी सावंतरी देवी और बेटी सलवंत देवी से मशवरा करता रहा। फिर कहने लगा, प्रताप देव, हमें यह रिश्ता मंजूर और कबूल है, जब भी आप रुखसती मांगेंगे हम इसके लिए तैयार हैं। ग्वालियर का राजा मान सिंह जब खामोश हुआ तब उदयपुर का राणा बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, पहले मैं और मान सिंह सिर्फ एक जाती मसला हल करना चाहते थे, अब एक की बजाय दो जाती मसले मिल गए हैं। अब हम इस मसले की तरफ आते हैं जो हम सबका मुश्तरका है, और ये मुश्तरका मामला कुछ यूं है कि इस वक्त हिंदुस्तान में छोटी छोटी हुकूमतें हैं और छोटे छोटे हुक्मरान अपना काम चला रहे हैं। अगर हम तीनों राजा आपस में मुत्तहिद हो जाएं और एक नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बना लें तो पूरे हिंदुस्तान पर मशरिक से मगरिब, जनूब से शुमाल तक अपनी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में इससे बड़ा और बेहतर तवाइफल मलूकी का दौर कहीं नहीं मिलेगा। कभी हिंदुस्तान पर सैयदों की हुकूमत थी, लेकिन अब सैयदों की तरफ से सुल्तान मोहम्मद बज़ाहिर हिंदुस्तान का बादशाह कहलाता है, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली और उसके गिरदो नवा में है, जबकि उसने खुद बदायून में कयाम कर रखा है और उसके पास इस कदर मुख्तसर सा इलाका है कि उसके मुतालिक लोग कहते हैं कि सल्तनत शाह आलम अज दहली ता पालम। एक दूसरा हुक्मरान बहलोल खान है, उसने लाहौर से लेकर पानीपत के इलाकों को अपने तसर्रुफ में ले लिया है। इसके अलावा मेहरवली के मकाम से लेकर लाडू से राय तक अहमद खान मेवाती का सिक्का चल रहा है। मांडू पर सुल्तान महमूद हुकूमत कर रहा है, उसके पास भी मांडू के इर्द गिर्द के काफी इलाके हैं और उसे वाली मांडू कहने के अलावा सुल्तान महमूद शर्की भी कहते हैं। गंगा जमुना के दुआबे में एक अलहदा हुकूमत कायम है, ये भी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं रखती। इनके अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत से छोटे हुक्मरान हैं। अगर हम आपस में इत्तेफाक और यकजहती पैदा करके और अपने लश्करों में इजाफा करके नए लश्करियों की बेहतरीन तरतीब का काम सर अंजाम देकर हरकत में आए तो इन सारे छोटे छोटे हुक्मरानों पर काबू पाने के बाद हम हिंदुस्तान में अपनी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकते हैं। उदयपुर का राणा जब खामोश हुआ तब मालवा का प्रताप देव कहने लगा, ये जो गुफ्तगू हुई है ये बड़ी कीमती और सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। अगर आप दोनों हजरात चाहते हैं कि हम कुव्वत हासिल करें और उसके बाद हिंदुस्तान में सब छोटे छोटे हुक्मरानों का खात्मा करके अपनी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम करें तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट हमारे रास्ते में नहीं आएगी और हम बड़ी आसानी से ये काम कर गुजरेंगे। प्रताप देव जब खामोश हुआ तब इस बार राजा मान सिंह बोल उठा, आप दोनों की गुफ्तगू ने मुझे मुतमईन कर दिया है। मैंने पहले ही ग्वालियर में नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द मैं एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर तैयार करने में कामयाब हो जाऊंगा, जबकि उदयपुर में राणा भी इस काम की इब्तिदा कर चुका है।
मान सिंह जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए प्रताप देव कहने लगा, आप लोगों ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं। मैं बहुत जल्द अपने दोनों बेटों नरसिंह राय और भीम की जेर निगरानी नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का काम शुरू करता हूं। और जब मैं देखूंगा कि मेरे पास एक ऐसा लश्कर हो गया है जिससे मैं हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूं, तब मैं अपने इलाकों के इर्द गिर्द जो दूसरे हुक्मरानों के इलाके हैं उन पर हमलावर होकर दस्त अंदाजी करते हुए जेर नगी इलाकों में इजाफा करता रहूंगा। और ऐसा ही आप दोनों भी करें। इस तरह जहां हमारे जेर नगी इलाकों में वुसअत पैदा होगी, वहां हमारी अस्करी ताकत और कुव्वत में भी इजाफा होगा। और हमारी उन हरकत को सामने रखते हुए अगर हिंदुस्तान के किसी भी हुक्मरान ने हमारे आड़े आना चाहा तो हम तीनों मुत्तहिद होकर उसे इस धरती से ही निकाल बाहर करेंगे। यहां तक कहने के बाद प्रताप देव जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए राजा मान सिंह और राणा उदयपुर ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर राजा मान सिंह बोल उठा, मैं और राणा दोनों मुतमईन और खुश हैं कि जिस मकसद के लिए हम आए थे उसमें हम कामयाब रहे हैं। अब हम आपके यहाँ ज्यादा कयाम नहीं करेंगे, सिर्फ एक शाम यहाँ ठहरेंगे और कल यहाँ से अपने अपने इलाकों की तरफ कूच कर जाएंगे और जाकर अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर देंगे। राजा मान सिंह यहीं तक कहने पाया था कि उसकी बात काटते हुए प्रताप देव बोल उठा, अगर आप कल रवाना होना ही चाहते हैं तो फिर शाम को यहां से कूच करें। राजा मान सिंह ने गौर से प्रताप देव की तरफ देखा और पूछा, वो क्यों? क्या इसकी कोई खास वजह है? इस पर प्रताप देव कहने लगा, खास नहीं बल्कि बहुत बड़ी वजह है। दरअसल कल हमारे लश्कर के बाहर एक जश्न का समा होगा। वो किस खुशी में? राजा मान सिंह ने गौर से प्रताप देव की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। वो इस वजह से कि कुछ मुसलमान मुसल्लह जवान मेरी रानी के भाई पर हमलावर हुए और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ जो मुहाफिज थे वो हमलावरों से उलझे, उनमें से एक तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी भागने में कामयाब हो गए। अब जिसे हमने गिरफ्तार किया था उसी का जश्न हम शहर से बाहर मनाएंगे। इस बार राणा ने पूछा, प्रताप देव कैसा जश्न? इस पर प्रताप देव ने अपने होंठों पर जबान फेरी और कहने लगा, जिस मुजरिम को हमने सजा देनी हो पहले उसे शहर से बाहर हम दरिंदों के आगे डालते हैं। अमूमन वो दरिंदों के हाथों ही कुचला मसला खाया पिया जाता है। अगर कोई बच जाए तो फिर उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए कुर्रा अंदाजी करते हैं। अगर कुर्रा उसके हक में निकले तो उसे छोड़ देते हैं और अगर कुर्रा मुखालफत में पड़े तो फिर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जिस कातिल को हमने पकड़ा है उस पर कल एक चीते को छोड़ा जाएगा। ये वो चीते नहीं जिन्हें हम शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पालतू हैं, बल्कि चंद चीते हमने ऐसे मुजरिमों से निपटने के लिए पाल रखे हैं और बड़े खूनख्वाराना अंदाज में हमलावर होते हैं। आज रात को शहर के बाहर लोहे का बड़ा गोल पिंजरा नस्ब कर दिया जाएगा। उसके लिए एक मखसूस मैदान है जिसके अतराफ में नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। यह मामला देखने के बाद भले आप रुखसत हो जाइएगा। प्रताप देव के इन अल्फाज पर राजा मान सिंह और राणा उदयपुर ने खुशी का इजहार किया। फिर कहने लगे, अगर ये मामला है तो फिर हम इस मुकाबले से जरूर लुत्फानंदोज होंगे, लेकिन ये मुजरिम है कौन और ये है कहां? इस पर प्रताप देव कहने लगा, उसका नाम तो उमर खान है, मंगोल है, मुसलमान है और इस वक्त जिंदान में बंद है। उसके साथ ही प्रताप देव अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, अब आप आए। आप दोनों हजरात और आपके बच्चों के आराम और कयाम का एहतमाम किया जाता है, उसके बाद खाने का एहतमाम करेंगे। इस बार सब उठकर खड़े हुए और प्रताप देव ने ग्वालियर के राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा के कयाम का एहतमाम उनकी रानियों और बच्चों के साथ राजमहल के एक हिस्से में कर दिया था।